اگست سال 1493 کا دن تھا۔ شام کا وقت تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ کیریبین سمندر میں ایک جہاز پانی کی سطح پر دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس جہاز کا نام سینٹا ماریا تھا، جس پر تقریباً 30 لوگ موجود تھے۔ جہاز کا کپتان کرسٹوفر کولمبس تھا، جسے ہسپانیہ سے نکلے 2 مہینے گزر چکے تھے اور 2 مہینوں سے یہ جہاز سمندر کی لہروں پر کسی انجان سفر کی طرف رواں تھا۔ کولمبس کئی راتوں سے سویا نہیں تھا اور شدید پریشانی میں مبتلا تھا، کیونکہ اسے کسی نئی زمین کی تلاش تھی۔ یہ جہاز جب ڈومینیکن ریپبلک کے قریب پہنچا تو دور چھوٹے چھوٹے ویران جزیرے دکھائی دیے۔ کولمبس ان کا جائزہ لینے کے لیے جہاز کے کنارے پر کھڑا ہوا اور انہیں بغور دیکھنے لگا۔ سمندر دور دور تک شانت تھا، سرد ہواؤں سے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی اور اس خاموش علاقے کی خاموشی کانوں میں ایک خوفناک دہشت پیدا کر رہی تھی۔ اچانک کولمبس کی نظریں سمندر میں تیرتی کسی چیز پر پڑیں جو حرکت کر رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو یہ اس کی سوچ کے برخلاف کوئی مچھلی نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب مخلوق تھی، جس کا آدھا جسم انسان نما اور آدھا مچھلی کی طرح تھا۔ کولمبس نے بچپن سے ہی جل پریوں کے متعلق کہانیاں سن رکھی تھی، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ مرمیڈ ہے۔ یہ تعداد میں 3 تھی جو پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ کولمبس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی، لیکن جہاز کی لہروں کو سنتے ہی فوراً یہ جل پریاں پانی میں کہیں غائب ہو گئیں۔ کولمبس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان داستانوں اور قصوں کو، جسے وہ اب تک ایک افسانہ مانتا آیا تھا، آج خود اس کی آنکھیں ان جل پریوں کے وجود کی گواہ بنی تھی۔ جل پری نامی اس مخلوق کو پوری دنیا میں دیکھے جانے کے اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پر اسرار مخلوق ہے جس کا آدھا جسم عورت نما اور آدھا مچھلی کا ہوتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں چھپی یہ خوبصورت راز آخر حقیقت ہے یا محض افسانہ؟ ہماری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی تخلیق ہے جہاں زندگی مخصوص نظام کے تحت چلتی ہے۔ یہاں زندگی پیدا ہوتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، جاندار قدرت سے بہت کچھ لیتے اور دیتے ہیں اور پھر ایک دن ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اس نظام کے سلسلوں میں مختلف قسم کی مخلوق پیدا بھی ہوتے ہیں اور آگے چل کر معدوم اور ختم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں ایسے بے شمار مخلوق تھے جن کا آج وجود نہیں ہے۔ یہ یا تو اپنے سے بڑے جانداروں کے شکار ہو گئے یا قدرتی آفات اور تباہی نے ان کے وجود کو دنیا سے ختم کر دیا۔ آج وہ عجیب و غریب مخلوق قصوں، کہانیوں، مائتھالوجی اور داستانوں کا حصہ ہیں۔ مختلف تہذیب، ثقافت اور کتابوں میں طرح طرح کے جانداروں کی بات کی گئی ہے جسے خدا نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آج سائنس ایسے کسی بھی جاندار کے ایگزسٹنس کو نہیں مانتی، لیکن دنیا کی ہر تہذیب اور مائتھالوجی میں ایک جیسی مخلوق کا ذکر ملنا اور قدیم لوگوں کا ان جانداروں کے بارے میں لکھی گئی باتوں کو نظر انداز کر کے ان جانداروں کے وجود سے انکار کرنا ایک ناانصافی ہوگی۔ پر اسرار مخلوق میں ایک مخلوق جل پری ہے۔ جل پری ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں سن کر انسان اس خیالی دنیا میں کھو جاتا ہے جہاں گہرے سمندر میں خوبصورت مچھلی نما عورت اپنی پونچھ کے سہارے رنگ برنگی مچھلیوں کے ساتھ تیر رہی ہوتی ہے۔ جل پریاں ایک ایسی مخلوق ہیں جو 3000 سالوں سے انسانیت کے لیے ایک راز بنی ہوئی ہے۔ انہیں یورپ میں مرمیڈ کہا جاتا ہے۔ فرینچ کے یہ 2 لفظ مر یعنی سمندر اور میڈ یعنی عورت سے مل کر بنا ہے، یعنی سمندر میں رہنے والی ایسی مخلوق جس کا جسم تو عورت کا ہوتا ہے لیکن پیروں کی جگہ مچھلی کی طرح پونچھ ہوتی ہے۔ جبکہ کئی لوک کتھاؤں میں سمندری آدمیوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں مرمین کہا جاتا ہے۔ جل پریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ کسی شخص پر مہربان ہو جائے تو سمندر کی تہہ میں موجود خزانوں کو لا کر وہ انسان کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جل پریوں کے پاس کچھ غیر معمولی طاقتیں ہوتی ہیں جو کسی عام انسان یا حیوان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ مرمیڈ آنے والے طوفان اور زلزلوں کے بارے میں بھی پہلے سے جان لیتی ہیں۔ قدیم اساطیروں میں 2 طرح کے جل پریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایک اچھی اور ایک بری جل پری۔ اچھی جل پریاں لوگوں کی جان بچانے اور ان سے دوستی کرنے اور آنے والی مصیبتوں سے انسان کو آگاہ کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ وہیں بری جل پریاں
लोगों की जान लेने के लिए जानी जाती हैं। तहकीक दानों के लिए तारीखी हवालों से ये साबित करना बहुत मुश्किल हो गया है कि सबसे पहले जल परियों का तस्वुर इंसानी जहन में कहाँ से और कैसे आया था। कदीम बाइबल मसीह के अफसानों में 1000 साल कबल में एक समंदरी मखलूक का जिक्र आया हुआ है। इसे बाबली लोग तैमूत कहा करते थे। बाबुल के खंडराट से निकलने वाले कतबों में भी लंबे दुम वाली मखलूक की तस्वीर मिलती है। ऐसा मालूम होता है कि बाबली लोग इसे समंदर की देवी मानते थे और इसकी पूजा किया करते थे। आयरलैंड के कदीम मकामी कबीले यानी आयरिश लोगों में भी लेबिन नामी जलपरी की कहानी मशहूर थी, जिसे वो देवता की बेटी मानते थे। आयरिश के मकामी गिरजाघरों में आज भी इसकी तस्वीरें और मुसव्विर मौजूद हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कदीम ज़माने का एक डूबा हुआ शहर एटलांटिस में जल परियां रहा करती थी और आज भी इस तबाहशुदा शहर में जल परियां छुपी हैं और अक्सर समंदर से निकलकर साहिल के किनारे आ जाती हैं। कदीम यूरोप में जल परियों का तस्वुर मरफालिक की कहानियों से आता है, जो पानी में रहने वाला इंसान नुमा मखलूक था और जल परियां इसकी ख़वातीन थीं। मरफालिक या मरमैन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मिस्र के 3 ताकतवर देवताओं में से एक थे, जिनका नाम पोसाइडन था। ये समंदर और तूफान का देवता है। अफ्रीकी मज़हब में भी ऐसे ही समुद्री मरमैन की कहानियाँ मशहूर हैं। अगर कदीम यूनान की बात करें तो यूनान में जल परियों को सायरन कहा जाता है, जिसका जिक्र यूनान के मशहूर किताब में मिलता है। यूनानी असातीर के मुताबिक सायरन पानी में रहने वाली वो मखलूक थी जिसका जिस्म खूबसूरत औरतों की तरह होता था, जो समंदर के बीच में पाए जाने वाले चट्टानों पर रहा करती थी। जब भी कोई जहाज़ रास्ता भटक कर इनके करीब पहुंचता तो ये सायरन सुरीली आवाज़ में गाना गाने लगती। इनकी आवाज़ में ऐसी कशिश होती थी कि सुनने वाला इनमें गुम हो जाता और वो इनकी तरफ खींचा चला जाता। ये उन्हें अपनी आवाज़ और ख़ूबसूरती के जादू में फंसाकर वीरान जगह पर ले जाती और फिर उन्हें खुराक बना लेती। फ़िरौन की सरजमीन कदीम मिस्र की बात करें तो वहाँ अल नादा नामी मखलूक का तज़किरा मिलता है, जो नील नदी में रहा करती थी। ये खूबसूरत मछली नुमा औरत थी जिसके बाल सुर्ख रंग के थे और जो भी इसकी आंखों में देखता वो खो जाता और इसकी मोहब्बत में डूब जाता। इसकी तस्वीरें मिस्री मकबरों और खंडरात में आज भी मिलती हैं। जल परियों का जिक्र हिंदू मज़हब में भी मिलता है। हिंदू माइथोलॉजी में इन्हें मतीसिया कन्या कहा जाता है, जो समंदर, दरियाओं और नहरों में पाई जाती है। इन्हें समंदर के अजीम देवता वर्ना की बेटियां कहा गया है। इस मखलूक के मुतल्लिक मतीसिया पराना नामी एक किताब भी मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि रावण की एक बेटी थी जिसका नाम सवाना मचा था, जो आधी औरत और आधी मछली थी। जब श्री रामचंद्र के बंदरों का लश्कर हिंदुस्तान से श्रीलंका तक पत्थरों का पुल तैयार कर रहा था तो ये उन्हें तंग करती और पत्थर इधर उधर कर दिया करती। रूस और यूक्रेन के कदीम कबाइल में भी मरमेड के किस्से मशहूर हैं, जिन्हें वहाँ रुसालका कहा जाता है। इनके अफसानों के मुताबिक रुसालका मरी हुई लड़कियों की रूहें होती हैं, ख़ासकर उन औरतों की जिन्हें कत्ल कर दिया गया हो या मजलूमियत में मार दिया गया हो। रुसालका खूबसूरत रूप में चाँद की रोशनी में समंदर के किनारे रक्स करती थी और लोगों को इनके नाम से पुकारती थी और इनके पास जाते ही लोग पानी में डूबकर मर जाते थे। जबकि कदीम चीनी लोग मरमेड को लिंगियों कहा करते थे। कदीम चीन में जल परियों के आंसुओं को बहुत कीमती माना जाता था, क्योंकि इनके आंसू ख़ास किस्म की मोतियों में बदल जाते थे। यही वजह थी कि मछुआरे हमेशा इन जल परियों के शिकार की तलाश में रहते थे। लिंगियों के बारे में चीनियों का ये मानना था कि अगर कोई इंसान लिंगियों का गोश्त खा ले तो उसे खूबसूरती और लंबी उम्र मिलती है। तारीख में इन मरमेड्स के मुतालिक बहुत सारे वाक़यात तारीख़ी किताबों में रिकॉर्ड भी किए गए हैं। मसलन मशहूर रोमन मुसन्निफ और फ़लसफ़ी पेनी डी एल्डर ने अपनी कुदरती तारीख़ नामी किताब में मरमेड के मुतालिक लिखा है। पेनी ने बताया कि मशहूर रोमन बादशाह अगस्टस के सिपाहियों ने समंदर के किनारे बहुत सारी जल परियों की लाशें देखी थी। मरमेड का एक किस्सा 1000 साल कबल अज़ मसीह में लिखा गया था। ये किस्सा असीरिया का है। कहा जाता है कि असीरिया में देवी रहा करती थी जिसको चांद की देवी माना जाता था और असीरिया के लोग 4000 साल पहले इसकी पूजा करते थे। लेकिन उसे एक दिन
भेड़ चराने वाले एक शख्स से मोहब्बत हो गई। कहते हैं कि जब उसने उसके साथ जिनसी ताल्लुक बनाया तो वो शख्स इसकी ताकत को झेल ना पाया और वो मर गया। इसको इस बात का बहुत सदमा पहुंचा। दुख और पछतावे में आकर वो एक झील में कूद गई, लेकिन इसकी ताकत और खसूसियत ने उसे मरने ना दिया और वो हमेशा के लिए पानी के अंदर एक मछली बनकर रह गई जो दुनिया की पहली जल परी थी। उसने पानी में एक बच्चे को भी जन्म दिया जो आगे चलकर असीरिया की रानी बनी, जिसे समरामिस के नाम से जाना जाता है। जल परियों के बारे में जो चीज़ सबसे हैरत अंगेज़ है वो ये है कि मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने बिल्कुल एक जैसी मखलूक का जिक्र किया है। ये बात बहुत हैरत अंगेज़ है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों, जिनका उस वक्त आपस में कोई ख़ास राब्ता भी नहीं था, इन तमाम लोगों ने एक ही मखलूक के मुतालिक बयान दिया है। दुनिया भर में जल परियों को देखे जाने के कई वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर वाक़यात झूठे और बनावटी हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जो हकीकी मालूम होते हैं। ज़्यादातर साहिली इलाकों में रहने वाले मल्लाह लोगों ने जल परी देखे जाने के वाक़यात बयान किए हैं। उन्होंने इन मरमेड्स को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। इन मल्लाहों में एक बड़ा नाम 19वीं सदी के एक मशहूर सयाह क्रिस्टोफर कोलंबस का है, जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था। कोलंबस ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि एक सफ़र के दौरान जब उसका जहाज़ कैरिबियन समंदर में पहुंचा तो उसके और उसके मल्लाहों ने अपनी आंखों से मरमेड्स को देखा था। यहाँ कोलंबस ने 3 जलपरियाँ देखीं जो उनके जहाज़ के इर्द गिर्द मंडला रही थी। साइंसदानों ने इसे सिर्फ कोलंबस का धोखा करार दिया है और कहा है कि चूंकि कोलंबस कई दिनों से सोया नहीं था और एक लंबे सफ़र की वजह से थक चुका था, लिहाजा उसे सिर्फ वहम हुआ होगा। लेकिन कोलंबस अपनी पूरी ज़िंदगी यही दावा करता रहा कि वो मखलूक जल परी ही थी जो जहाज़ में मौजूद लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। 15वीं सदी में सिर्फ कोलंबस ही ऐसा शख्स नहीं था जिसने जल परियों को देखने का दावा किया था। कोलंबस से पहले उस साल 1430 में नीदरलैंड के शहर एडम में एक खौफनाक समुद्री तूफान ने शहर में तबाही मचा दी। पूरे शहर में सैलाब और सुनामी जैसे हालात हो गए थे। लोगों ने यह दावा किया था कि तूफान के बाद उन्होंने जल परी जैसी मखलूक को समंदर के किनारे मुर्दा पाया था। साल 1611 में मशहूर इंग्लिश एक्सप्लोरर हेनरी हिडसन ने भी अपने सफ़रनामे के मुतालिक एक जर्नल लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि नॉर्वे के करीब मौजूद समंदर के पास उन्होंने जल परियों के एक झुंड को देखा था। ये मरमेड उनकी नाव के चारों तरफ मौजूद थीं, जिनके जिस्म का रंग सफ़ेद था और बालों का रंग बिल्कुल स्याह था, जो काफ़ी लंबे थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भी इंडोनेशिया के आयरलैंड पर कुछ जापानी सिपाहियों को अजीबोगरीब मखलूक पानी में तैरती दिखाई दी थी। मकामी लोगों ने उन्हें बताया कि ये पानी में रहने वाली जल परियां हैं जो यहाँ हज़ारों सालों से रहती हैं। जल परियों को देखे जाने के वाक़यात सिर्फ 15वीं और 16वीं सदी में ही नहीं बल्कि इस जदीद दौर में भी मिले हैं, जिसमें सयाह और समंदरी एक्सप्लोरर ने अपने कैमरे में मरमेड नुमा मखलूक को रिकॉर्ड किया है। अक्टूबर 2017 में मीरा पत्थर में एक ऑस्ट्रेलियन बाशिंदा साहिल पर टहल रहा था। तब ही उसकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। उसने देखा कि पीले लिबास में 2 आदमी एक स्ट्रेचर पर किसी को ले जा रहे हैं। इस मखलूक के जिस्म का निचला हिस्सा नीला और मछली नुमा था। ये लोग इसे कहाँ ले जा रहे थे ये मालूम ना हो सका। इस वीडियो के वायरल होने पर कुछ लोगों ने ये दावा किया कि वो मखलूक जल परी थी और इसे खुफिया तौर पर लेबॉर्ट्री में ले जाया जा रहा था। साल 2012 में जिम्बाब्वे के गोरकिये शहर में एक डैम को बनाने वाले मजदूरों की टीम ने बीच में ही काम छोड़ दिया, क्योंकि इनका कहना था कि डैम से जुड़ी नदी में मरमेड का बसेरा है, जो कि इस डैम के काम को रोकने के लिए मजदूरों को जान से भी मार सकती हैं। डैम को पूरा बनाने के लिए दूसरे शहरों से लोगों को बुलाया गया, लेकिन काम के महज 2 हफ्ते के बाद ही उन्होंने भी काम छोड़ दिया और उनका भी यही कहना था कि रात के वक्त वहां जल परियों का झुंड देखा है।
زمبابوے کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ندی میں جل پریاں آباد ہیں جو کہ ان کے لیے ایک عذاب ہے، اور ندی میں ہونے والے تمام موت اور حادثے ان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سال 2012 میں جانوروں کا سیارہ نامی مشہور چینل پر دکھائی گئی دستاویزی فلم کی فوٹیج نے ایک بار پھر سے لوگوں کے من میں جل پریوں کو لے کر کچھ سوال کھڑے کیے۔ اس دستاویزی فلم کا نام دی ہڈن مرمیڈز تھا۔ کچھ لوگ پانی کی گہرائی میں رہنے والے جانداروں کا پتہ لگا رہے تھے، تب انہوں نے ایک ایسی مخلوق دیکھی جس کا آدھا جسم انسانوں کی طرح اور آدھا مچھلی کی مانند تھا۔ اس کی جھلک ویڈیو میں بھی قید کر لی گئی۔ یہ ویڈیو اسرائیل کے کریات نامی شہر کے ساحل پر ریکارڈ کی گئی تھی، جس میں کچھ سیاحوں کو بیچ کی چٹانوں پر ایک مخلوق دکھائی دیتی ہے۔ سیاح کا کہنا تھا کہ انہوں نے کیمرے میں مرمٹ کو قید کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس مخلوق نے ان کی طرف دیکھ کر ایک عجیب سی آواز